मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वेटरन ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश और सरकार से भावुक अपील की है। भारतीय सेना की पहली और इकलौती महिला कोर के रूप में एमएनएस ऑफिसर्स ने सीमाओं पर और कठिन हालातों में घायल जवानों की सेवा की, अपने परिवार और जीवन के सुनहरे साल देश के नाम कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में निर्णय आने के बावजूद उन्हें आज तक सम्मान और हक नहीं मिला। एसोसिएशन ने सरकार और समाज से 3 बड़ी मांगे रखी हैं। और पे कमीशन वी वर इंक्लूडेड हिंदी में बोले हम लोग पे कमीशन में इंक्लूडेड है एनी अदर ऑफिसर्स rank. We are coming under their matrix, supposed to be in 6th and 5th, 4th पे कमीशन हम लोग all officers का साथ है हमारा मैट्रिक्स. Separately, the MNS officers pay matrix made last 7th Central Pay Commission. So why that difference? We are regular army officers. The status is same, but for the money purposes, we are always segregated. That is humiliating us. Wherever you go, we are humiliated because our status is not there with us with the pay and perk. So we are also coming under AFMS, AMC officers, AD officers, and MNS officers. Why this stepmother treatment is given to MNS officers? Because ADCs and AMC officers are in the same panel and the MNS officers pay panel is different. Why that difference has come? Please, we appeal the government to look into the matter, and 2 nursing officers has to be members to our pay panel to include for suggestion and the correction of our pay matrix. That is also matter a lot because we work in the field areas as well as even a patient is transferred. We are alone with a patient with a life going to transfer the patient to different hospitals. So this all, we also work like any other Jawans and even an officer. We are in a compact role almost because we do it and our pay and perk we also require like an officers. Thank you. Oldest women officers organization of the Indian Armed Forces, Military Nursing Services, is the first corps of regiment of Indian Army which was open for recruitment to the women in India. It was raised an auxiliary force by regiments in Indian Army. It is the oldest and exclusive women officers organization of the Indian Armed Forces. It is the oldest exclusive women officers organization of the Indian Armed Forces as well. It was the earliest type of nursing in Indian Armed Forces history. In 1664, the East India Company started a hospital for soldiers in a house at Fort St. George, Madras. The first sister was sent from St. Thomas Hospital, London, to the military hospital. In 1888, Indian Nursing Services was established. The first batch of British trained army nurses arrived in India for services in station hospitals for British troops. 6 nurses were posted to Rawalpindi and 4 to Bangalore. जैसे बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमने बेटी को बचा भी लिया, बेटी को पढ़ा भी लिया, लेकिन जब बेटी के अधिकार देने की बात आती है तब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है औरतों के साथ, है ना? तो जब हम आगे बढ़ के हम सोल्जर्स की इतनी सेवा करते हैं लेकिन हम अपने लॉफुल राइट्स मांग रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो हमारा था हमसे ले लिया गया हम वो वापस चाहते हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस था, पहले हम थे, क्यों हमसे ले लिया गया? क्या हम आर्मी के पार्ट एंड पार्सल नहीं है? जब हमारा इंडक्शन होता है इंडियन आर्मी में तो जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें लिखा होता है टू बी इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी एज कमीशन्ड ऑफिसर्स, लेकिन जब एक्स सर्विसमैन स्टेटस देने की बात आती है तो आप ऑफिसर्स नहीं है। 20 साल इस सर्विस को देने के बाद आज मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि अगर मैं बाहर जाती हूँ आई एम नॉट एन एक्स सर्विसमैन, मैं अपने आप को क्या बुलाऊं? अपने 20 साल प्राइम के हमने दिए हैं। हम लोग जब आर्मी में आते हैं हम 19, 20, 21 साल के होते हैं, और जब हम जॉब छोड़ते हैं 40, 45 साल में हमें कई बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटीज हम जब रात भर करते हैं बैठ के चेयर्स में बैठते हैं। मोस्ट ऑफ अस विल हैव बैकएक, सबको पीआईवीडी हो जाता है। मोस्ट ऑफ अस विल हैव डायबिटीज, क्योंकि हमारी जॉब इतनी स्ट्रेसफुल है। लेकिन जब कोई भी फैसिलिटी देने की बात आ जाती है तब हम ऑफिसर्स नहीं है। तो इसी चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और हम अपने
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को हमारे राइट्स वापस दिए जाए। थैंक यू सो मच। देखिए, सरकार हमारे साथ, हम सरकार के साथ है। सरकार इज डूइंग सो मच, इतना बहुत अच्छा करते हैं, भारत को इतना अच्छा पोजीशन में लेके आया है, और वो नारी के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमें होप है, हम भी बीइंग नारी शक्ति फर्स्ट वुमेन एम्प्लॉयर्स इन द इंडियन आर्मी, हमारा जो समस्या है गवर्नमेंट उसको मतलब हमारे अपील एक्सेप्ट करे और हमारे लिए ये सॉल्व करके, गवर्नमेंट हैज फुल पावर टू डू दैट। तो हम वही चाहता है कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन दिस मैटर एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इट्स अ हम्बल अपील टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अभी जो नए लोग में हाँ जी, आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम ये सॉल्व हो जाएगा ना, उनको भी अच्छा है, क्योंकि जो आ रहे हमारे देश को सेवा करने के लिए बहुत लोग आ सकते हैं। जब भी इनको पता चल रहे, देखो हमारे पूर्व लोग हैं, इनको ये मिल नहीं रहा, हम भी इसमें आएगा तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनको भी आगे आने के लिए और नेशन के लिए सर्व करने के लिए उनको एक अच्छा मौका है। हमें ये सब सोल्व होगा, इतना लोग आएगा नेशन के लिए और दे विल डू देयर सर्विस बेस्ट, है ना। तो नमस्कार, जय हिंद। मेरा मेजर शालू वर्मा है। मैंने 14 साल तक एक्सट्रीम सर्विसेज दी इंडियन आर्म फोर्सेस को, और आफ्टर रिटायरमेंट में आई हूँ 2022 में भारतीय सेना की सेवा करके। और मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा है कि 14 साल मैंने अपने इंडियन आर्मी को दिए, और उसके बाद मैं जब आ रही हूँ वापस एक सिविल वर्ल्ड में, तो मुझे कितने सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि मेरे पास मेरा स्टेटस नहीं है, मेरा पहचान नहीं है। मैं जब भी किसी कैंट एरिया में 14 साल तक मैंने सर्विसेज किया डिफरेंट पार्ट्स में अपने कंट्री के, सारा फील्ड हॉस्पिटल्स, पीस एरिया, बट वहाँ पे मुझे अपना आई कार्ड मेरे पास इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया हुआ था, इंडियन आर्म फोर्स, मेजर शालू वर्मा, कैप्टन शालू वर्मा, लेफ्टिनेंट शालू वर्मा। बट जब मैं वापस आ रही हूँ अपने इस क्षेत्र में, जहाँ पे मुझे दोबारा से एक जीवन को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मेरे पास मेरी पहचान क्या है? पहचान के नाम पे आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरी इंडियन मोदी, जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारी शक्ति के लिए जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, और अब तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, नारी शक्ति फॉर्म हमारा यहाँ पे है इंडियन मिलिट्री सर्विसेज का, द ओनली वुमेन फोर्सेस जो हमारे यहाँ पे है। ऑपरेशन सिंदूर तक हमने अपनी पहचान छोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे राष्ट्रपति भी हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं जो एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस आवाज़ को, इस अपील को, इस प्रार्थना को हमारी इंडियन गवर्नमेंट सुनेगी और हमारे साथ में ये न्याय करेगी कि हाँ, एक्स सर्विसमैन स्टेटस रेगुलर सर्विसेज ऑफिसर्स की तरह हमें भी मिले, और हमारी पहचान हमें वापस ये इंडियन गवर्नमेंट हमें इस साल में हमें ये तोहफा, इस नवरात्रि के उत्सव पर, इस नारी शक्ति सशक्तिकरण के उत्सव पर हमें ज़रूर प्रदान करेगी। ये मेरी यही अपील है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आई मेजर अलका, सर्व्ड इन आर्मी फॉर 14 years. मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ऑन द सेक्रेड ओकेजन ऑफ सेंचुरी, हम सरकार से और रक्षा मंत्रालय से विनम्र निवेदन करते हैं कि एमएनएस ऑफिसर्स को समान सेवा, लाभ व पेंशन प्रदान की जाए। हमारे कार्य और समर्पण को सम्मान व समान पहचान मिले। एक्स सर्विसमैन का कोटा मिले, जो हम हेल्थ केयर में मिलिट्री की बैकबोन बन के आज तक चलते आए हैं और 100 years तक अभी तक चलते आ रहे हैं। उस ओकेजन पे हमें एक्स सर्विसमैन का एक गिफ्ट दिया जाए। दिस इज नॉट डिमांड बट ए राइटफुल रिक्वेस्ट फॉर जस्टिस and dignity. As we celebrate 100 years of MNS, let us remember we are not only caregiver, we are warriors of compassion. 100 वर्षों से राष्ट्र ने हम पर भरोसा किया। अब समय है कि हमें न्याय और समान अधिकार मिले और एक्स सर्विसमैन का कोटा मिले। जय हिंद। When we were wanted to take an office in Delhi, it was impossible because it was all around one person to conduct it. It is difficult. So I had gone back, decided that I will not leave this organization. After we have come back to Trivandrum, I thought we have to have an office for the function of this organization.
I have taken an office in Trivandrum, which was inaugurated in 2024, February 20th by Station Commander. Identity card, that much I can assure. Other things like our job and job facilities, it will be also given simultaneously. So we'll have to maybe wait for a few more hours or days. Our